Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15 study note number 2.2, that is transfer pricing. So today we will solve illustration number 51. PH Limited manufactures and sells two products, namely BXC and DXC. Company's investment in fixed asset, that is 2 lakhs. Working capital investment is equivalent to the 3 months of cost of sales of both the products. The fixed capital has been financed by term loan lending institutions at an interest of 11% per annum. ओके, सो ये जो फिक्स असेट यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलेंगे, सो ये जो है उसका हम लोग ने किधर से हम लोग ने मतलब किधर से हम लोग ने लोन लिया है. सी लोन हम लोग ने लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लिया है 11% से. ओके, सो वी हैव अरेंज द फिक्स कैपिटल ऑफ दिस 2 lakhs by taking a loan from lending institutions at interest rate 11% per annum. Okay, half of the working capital is financed through the bank borrowings carrying interest at the rate of 19.4%, and other half working capital being generated through the internal resources. Okay, so this para is very important for this question, because each and every calculation is depending on this paragraph and this information. Okay, the operating data anticipated for here it should be 2016 and 17. Okay, if you are having old edition then it may be 82 and 83. Just ignore, it is not that much relevant. So operating data anticipated for 2016 and 17 is as under. Okay, so BXC का डेटा दिया है और DXC का डेटा दिया है. प्रोडक्शन पर एनम इन यूनिट्स, सो पर एनम में हम लोग 5000 यूनिट्स BSC का करते हैं और DSC का 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, सो पर यूनिट का डेटा दिया है, डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट का डेटा दिया हुआ है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर आवर्स. Okay, so direct labor hours, these are the hours. Okay, these are the hours, this is not a amount or this is not a rate, these are the hours. Okay, this is also quantity, that is kg, and here hours are given. Direct wage rate rupees 2 per hour. Okay, so we will multiply this 5 by this 2, then we will get the wages per unit. Okay, factory overheads are recovered 50% of direct wages. Okay, administration overheads recover 40% of factory cost. Okay, selling and distribution expenses are 2 and 3 per unit respectively. Okay, of BXC and DXC. Okay, the company expect to earn an after tax profit to 12% of capital employed. Okay, so capital employed में यानी कि फिक्स कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल को मिला के जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा उसका 12% हम लोग जो प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होगा. ओके, ये सब कैलकुलेशन हम लोग एंडिंग में करेंगे. वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं किया तो वो गलत हो सकता है. आपको अच्छे से समझ के करना पड़ेगा. द इनकम टैक्स रेट इज़ 50%. ठीक है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर. ओके, रिक्वायर prepare a cost sheet showing element wise cost, total cost, profit and selling price per unit of both the products. Okay, in short we have to we have to prepare cost sheet. Okay, we have to prepare cost sheet showing per unit cost and amount. Prepare a statement showing net profit of the company after tax for the year 2016 and 17. Okay, this is the second part. First of all we have to focus on cost sheet. Okay, so question number 51, cost sheet. BXC and DXC are the products. ओके, नंबर ऑफ़ यूनिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा तो हम लोग को बाद में यूज़ करना है, क्योंकि ये सब इंटरेस्ट का डेटा है. उसके बाद वो कैपिटल किधर से लाया वो सब इंटरेस्ट के लिए हम लोग को दिया है, सो ये तो बाद में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट शीट तो करके लेंगे. प्रोडक्शन यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स 5000 एंड 10,000 हम लोग ऊपर लिख के रखेंगे. BXC का 5000 यूनिट्स है और DXC का 10,000 यूनिट्स है. ओके, ताकि कैलकुलेशन में ईजी पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल direct material, we are doing cost sheet, so direct material consumption plus direct wages, then prime cost, that format we have to follow. So first of all direct material. अभी डायरेक्ट मटेरियल करते वक्त ध्यान से करना है. ओके, उसमें गड़बड़ी नहीं करनी है. सी डायरेक्ट मटेरियल का 2 टाइप है. ओके, सो BXC में कितना लगता है. सी 1 kg, राइट, 1 kg, सो 4
मल्टीप्लाइड बाय 1 इट इज़ 4 रुपीज़ 4 राइट. ए का रुपीज़ 4, बी का भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ रुपीज़ 2. सो रुपीज़ 4 रुपीज़ 2. टोटल डायरेक्ट मटेरियल फॉर बी एक्स सी इज रुपीज़ 6. ओके 6 कैसे आया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ 2, 4 प्लस 2 इट कम्स टू 6. टोटल डायरेक्ट मटेरियल ऑफ बी एक्स सी इज 6. ओके सो डायरेक्ट मटेरियल इज 6. कैसे आया हम लोग का 4 प्लस 2. ओके 4 प्लस 2 इट कम्स टू 6. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट पर यूनिट का हम लोग फिल करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे. नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर. सी ये तो आर्स दिया हुआ है. ओके सो जो वेजेस का रेट है वो ₹2 पर आ रहा है. सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट कम्स टू 10. ओके 10 कैसा आया, 5 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई ₹2 का रेट है सो 10 आ गया. ओके ठीक है. वैसे ही हम लोग इसका DXC का भी फाइंड आउट करके रखते हैं. सी कितना केजी लगता है 0.75 और रेट कितना है 4. सो 0.75 इज द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 4 सो इट इज़ 3. ओके मटेरियल ए का लगता है 3 और बी में 1 है और रेट है 2. सो 3 मटेरियल ए का और 2 मटेरियल बी का दैट इज़ 5. ओके सो मटेरियल ऑफ DXC दैट इज़ 5. ओके कैसे आया 3 प्लस 2. ओके नेक्स्ट इज वेजेस. सो हियर 3 आवर्स multiplied by rate is 2. So 3 multiplied by 2, 6. 3 multiplied by 2. Okay 3 hours multiplied by rate is 2. Now prime cost. So 10 is direct material consumption is 6 plus wages is 10. So prime cost is 16. Here 5 plus 6 that is 11. Okay that is 11. So simply we have to multiply. So then we will get this amounts. So 5000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 5000 यूनिट्स 6 के हिसाब से 30,000 डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट ओवरऑल. ओके 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 50,000. ओके नेक्स्ट 5000 मल्टीप्लाइड बाय 16 इट कम्स टू 80,000. हियर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 50,000. 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 60,000. 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 1,10,000. ओके सो टोटल 30,000 प्लस 50,000 टोटल कितना आ गया डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट 80,000. हियर 50 प्लस 60 दैट इज़ 1,10,000. हियर 80 प्लस 1,10,000 दैट इज़ 1,90,000. ओके प्राइम कॉस्ट इज 1,90,000 इन टोटल. ओके नाउ नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स. अभी पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया है, ये सब कुछ हम लोग ने यूज़ किया. अभी इधर आना है. See, factory overheads are recovered at 50% of direct wages. Okay, these are the direct wages. We have to charge 50%. It means half of this, that is 5. Here 6 है उसका 50% यानी कि half यानी कि 3 right. So prime cost 16 plus your factory overheads that is 5. 16 plus 5 it comes to 21 which will called as factory cost. Okay, simply cost sheet बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे. ओके 40. ठीक है नेक्स्ट क्या है हम लोग को बोला है. सी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर रिकॉर्ड 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड नहीं फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट का 40% बोला है. सो फैक्ट्री कॉस्ट इज 21 उसका 40% यानी कि 8.4. सो 8.4. ओके 21 plus 8.4 it comes to 29.4 that is cost of production. ओके इधर भी करके लेंगे. फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 40 उसका 40% बोला है दैट इज़ 5.6. ओके 5.6. सो प्लस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा 14 प्लस 5.6 इसका इट कम्स टू 19.6. ओके 19.6. ठीक है नेक्स्ट क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 2 and 3 पर यूनिट. इट्स वेरी सिंपल 2 and 3. सो इधर कितना आ गया 31.4 और इधर 22.6. ओके 22.6 ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स. अभी आगे का जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट है वो हम लोग को पता है क्या नहीं पता है. सो इसके लिए सिंपली हम लोग ये टेबल अभी फिल करके लेंगे. सिंपली मल्टीप्लाई करना है फटाफट से.
5000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5000 क्या है यूनिट्स है और ये पर यूनिट है, सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25,000. नेक्स्ट 5000 मल्टीप्लाइड बाय 21, इट कम्स टू 1,05,000. नेक्स्ट 5000 multiplied by 8.4, it comes to 42,000. 5000 multiplied by 29.4, it comes to 1,47,000. Next 5000 multiplied by 2, it comes to 10,000. Here 5000 multiplied by 31.4, it comes to 1,57,000. This is cost of sale of BXC, 1,57,000. Now here 10,000 units are there, so simply multiply. 10,000 multiplied by 3, it comes to 30,000. 10,000 multiplied by 14, that is 1,40,000. 10,000 multiplied by 5.6, that is 56,000. 10,000 multiplied by 19.6, it comes to 1,96,000. 10,000 multiplied by 3, that is 30,000. And 10,000 multiplied by 22.6, it comes to 2,26,000. Okay, so this is the cost of sale of DXE. Now simply we have to take total. So 25,000 plus 30,000, it comes to 55,000. 1,05,000 plus 1,40,000, it comes to 2,45,000. 42,000 plus 56,000, it comes to 98,000. 1,47,000 plus 1,96,000, it comes to 3,43,000. Here 10,000 plus 30,000, it comes to 40,000. Here 1,56,000 plus 2,26,000, it comes to 3,83,000. Okay, it's very simple. 3,83,000. Okay, इधर तक तो बहुत सिंपल था, वो सब लोग कर सकते हैं वो. उसके बाद है इंटरेस्ट का और प्रॉफिट का कैलकुलेशन. उसके ऊपर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है और हम लोग को देखना है कि वो कैसे आता है. ओके, उसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो दो पार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल BXE प्रोडक्ट का, उसके बाद DXE प्रोडक्ट का. ओके, सो क्या क्या बोला है वो अच्छे से देखना है. सी, company's investment in fixed asset, that is 2 lakh. Okay, the working capital is equivalent to the 3 months cost of sales both the products. Okay, fixed capital has been financed by loan lending institution, that is interest 11.5%. Okay, तो अभी हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, राइट. अभी इसमें क्या है ना, हम लोग ने दो टाइप के लोन लिए. एक तो फिक्स कैपिटल के लिए है और दूसरा है वर्किंग कैपिटल में. ओके, सो दो पार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स कैपिटल के ऊपर और दूसरा है वर्किंग कैपिटल के ऊपर. ठीक है, तो अभी हम लोग का फिक्स कैपिटल टोटल कितना है. सी, फिक्स एसेट यानी कि वही रहेगा ना फिक्स कैपिटल, उसको ही फाइनेंस कैसे किया है हम लोग ने, 11% लोन लेके, 11% का इंटरेस्ट से लोन लेके. So 2 lakh is the fixed capital. 2 lakh is the fixed capital of overall company. There are two products, so we have to bifurcate between both the products. So 2 lakh का total capital है, 1 lakh इसका, 1 lakh इसका, right. 2 lakh का फिक्स कैपिटल है, सो 1 lakh BXC को लेंगे और 1 lakh DXC को. सो इसके लिए फिक्स कैपिटल इधर आएगा 1 lakh. ओके, अभी वर्किंग कैपिटल के बारे में बोला क्या है. सी, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू 3 months ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. ओके, 3 months ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. अभी हम लोग का BXC का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, 1,57,000. बराबर, उसका 3 months का करना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12, 39,250. वर्किंग कैपिटल 39,250, राइट. ओके, ठीक है. सी, ये 2 lakhs का यूज़ हम लोग ने कर लिया. ये जो सेंटेंस है 3 months वाला उसका भी किया. उसके बाद ये कैपिटल है जो फिक्स कैपिटल, वो कैसे कौन से इंटरेस्ट से लिया है, 11%. सो ये जो फिक्स कैपिटल है वो 11% पर एनम से लिया है.
ओके उसके बाद सी see half of the working capital is financed through the bank borrowings. The interest rate is 19.4% and half working capital is जनरेटेड थ्रू द इंटरनल रिसोर्सेज. अभी इंटरनल रिसोर्सेज यानी कि रिटेन अर्निंग, जो भी कंपनी का पैसा है वही यूज़ किया है, तो उसका तो हम लोग को कुछ नहीं चार्ज करना है इंटरेस्ट. सिर्फ ये जो हाफ वर्किंग कैपिटल है वो 19.4 के लोन से लिया है. ओके सो दिस इज द टोटल वर्किंग कैपिटल. ओके half is generated from internal resources and half is loan. ओके लोन से कितना लिया है और इंटरनल रिसोर्सेज से कितना लिया है वो हम लोग चेक करेंगे एक बार. ओके सी 39,250 इज द टोटल कैपिटल. हाफ यानी कि आधा आधा ना, सो डिवाइड बाय 2. 19,625 इज लोन एंड 19,625 इज इंटरनल रिसोर्सेज. इंटरनल रिसोर्सेज का इंटरेस्ट तो होगा नहीं, तो उसको तो कंसिडर नहीं करना है. ये जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट बोला है 19.4%. ओके सो वर्किंग कैपिटल में टोटल इंटरेस्ट हम लोग को इसके ऊपर फाइंड आउट करना है, इसके लोन के ऊपर. ओके सो 19,620 दिस मच इज द लोन मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इंटरेस्ट रेट 19.4%. कितना आ गया उसको राउंड अप करना है. 3,807 इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल. अभी इसका इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है. फिक्स का 1 लाख है, उसके ऊपर 11%, सो 11,000. तो इसका कितना आ गया ₹11,000. ओके सो टोटल इंटरेस्ट 11,000 फिक्स का, 3,807 वर्किंग का. सो टोटल इंटरेस्ट हम लोग का कितना आ गया 14,807. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा. ओके कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा अच्छे से पढ़ के करोगे तो आ जाएगा. इंटरेस्ट कितना आ गया हम लोग का 14,807 फुल अमाउंट. ओके ठीक है. अभी वैसे ही हम लोग को DXC का फाइंड आउट करना है. ओके अभी DXC में भी वैसे ही पार्ट रहेगा. फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, राइट. फिक्स कैपिटल विल रिमेन सेम बिकॉज वी हैव डिवाइडेड इक्वली. सो फिक्स कैपिटल इज़ 1 लाख. उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% बोला है. ओके और वर्किंग कैपिटल हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. वर्किंग कैपिटल क्या बोला है 3 months ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल. ओके सो वी हैव टू कैलकुलेट. सी this is the cost of sale of DXC 2,26,000. okay multiplied by 3 divided by 12 it comes to 56,500. so working capital is 56,500. okay there are two parts. first one is loan and another one is internal resources. okay they have told us that half is loan. So 56,500 divided by 2, that is half. 28,250 is the loan at the rate of 19.4%, and here 28,250 is the internal resources, so there will be no interest on this. okay I have explained this part in Hindi, so that's why I am explaining here English. okay ये हिंदी में एक्सप्लेन किया है तो ये हम इंग्लिश में हम लोग समझ लेंगे. So loan is 28,250. Rate, interest rate is 19.4%. It comes to 5,481. We have to round off. So interest, working capital का interest. Okay, interest 5,481. Here fixed capital का interest 1 lakh multiplied by 11%, it comes to 11,000. so finally here 11,000 on fixed capital and 5,481 on working capital. so total interest is 11,000 plus 5,481, it comes to 16,481. okay 16,481 बुक का आंसर है. उसमें अगर ओल्ड एडिशन रहेगा तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको क्योंकि उसमें मिस्टेक्स है. ओके इफ़ योर मॉड्यूल इज़ ओल्ड वन देन यू हैव टू check the answer okay in the updated one because there is a mistake in answer of this question. okay so this is we have calculated interest. now total interest
14,807 plus 16,481, it comes to 31,281. This is the interest, total interest. Okay, now we have to calculate the profit. Okay, we have to calculate the profit. For profit, see, for profit, paragraph is here. Okay, we have used entire paragraph, we have used this information also. Now only this part we have to use. The company expects to earn an after tax profit of 12% on capital employed. The income tax rate is 50%. Okay, so कंपनी का क्या है ना कि आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आएगा वो 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल BXC and then DXC. Okay, we are calculating what? We are calculating profit. Okay, so BXC में क्या बोला है हम लोग को? ओवरऑल प्रॉफिट जैसे भी फाइंड आउट करेंगे 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड BXC में, BXC के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना पार्ट आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या होता है? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. राइट, फिक्स कैपिटल अभी अभी हम लोग ने देखा 2 लाख का फिक्स कैपिटल है, उसमें से 1 लाख इसको मिलेगा, 1 लाख इसको मिलेगा. सो फिक्स कैपिटल इज ₹1 लाख. ओके, वर्किंग कैपिटल. ओके, वर्किंग कैपिटल अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया था, फिर भी एक बार अगेन देखते हैं. 3 months ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, 3 months ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो BXC का कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 1,57,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12, इट कम्स टू 39,250. So ₹39,250. Okay, now fixed capital 1 lakh plus working capital this much. So total capital employed is 1,39,250 in case of BXE. Okay, अभी हम लोग को DXC का भी हम लोग फाइंड आउट करके रखते हैं. ओके, वैसे ही. सो कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, फिक्स कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है. फिक्स कैपिटल इज 1 लाख. ओके, और वर्किंग कैपिटल क्या बोला है? 3 months कॉस्ट ऑफ सेल्स का. कॉस्ट ऑफ सेल इज 2,26,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12, इट इज 56,500. ओके, ₹56,500. सो टोटल 1,56,500 is the capital employed in case of DXE. ओके, अभी इसके ऊपर हम लोग को 12% बोला है. ओके, इसके ऊपर हम लोग को 12% बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर. सो मल्टीप्लाइड बाय 12%, मल्टीप्लाइड बाय 12%. ओके, सो 1,39,250 is the capital employed of BXC multiplied by 12%, that is ₹16,710. But this profit is what? See, this profit is after tax profit. This profit is after tax profit, क्योंकि बोला है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ही आएगा 12% फाइंड आउट किया तो. सो दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. वैसे ही इधर फाइंड आउट करना है. 1,56,500 मल्टीप्लाइड बाय 12%, इट कम्स टू 18,780 rupees. 18,780. This is also profit after tax because we are directly calculating 12%. Okay, but in this cost sheet we have to record profit before tax. ओके, क्योंकि कॉस्ट शीट में तो टैक्स आता ही नहीं है. हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए. राइट, सो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है वो हम लोग इधर रिकॉर्ड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट रिकॉर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हियर बिकॉज वी वांट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिकॉज टैक्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट शीट. ओके, नो प्रॉब्लम. सी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, उसमें से टैक्स चला जाता है तो क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. ओके, अभी हमारे पास ये BXE का आया है और DXE का आया है. ओके, कितना आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 16,710 और इसका कितना आया है? 18,780. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोथ. ओके, सी, टैक्स रेट कितना है? 50%. टैक्स रेट कितना है? 50%. तो ऑब्वियसली टैक्स के बाद जो आएगा वही टैक्स का अमाउंट रहेगा. राइट, क्योंकि 50% बोला है. ओके,
अभी हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सो एड बैक होगा ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो कितना आएगा 16,710 प्लस 16,710 दैट इज 33,420। ये तो बहुत बेसिक बात है। 18,780 प्लस 18,780 it comes to 37,560. Okay, so finally we are getting here profit before tax which we can record in the cost sheet. Okay, so first का आया 33,420. Okay, और इसका आया 37,560. so simply total लेना है 33,420 plus 37,560 it comes to 70,980. Okay, now we can easily calculate the sale here. Cost of sale is 1,57,000 plus interest is 14,807 plus 33,420. Okay, sale is 2,05,227. sale is 2,05,227 डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स। तो हम लोग को पर यूनिट का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 41.0 सी, ऐसे आ रहा है। सो राउंड ऑफ करेंगे 5 तक, राउंड ऑफ करेंगे 5 तक। नेक्स्ट हियर 2,26,000 प्लस 16,481 प्लस 37,560 it comes to 2,80,041. Okay, it comes to 2,80,041 डिवाइड बाय यूनिट्स दैट इज 10,000 यूनिट्स। तो कितना आ गया 28 सी, ऐसे आ रहा है। सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक 0 ही है, तो 28. ओके, सो टोटल सेल 2,05,227 प्लस 2,80,041 it comes to 4,85,268. 4,85,268. So here we have finally completed the cost sheet. Okay, कॉस्ट शीट करने के बाद हम लोग को क्या बोला है, सी कॉस्ट शीट होने के बाद प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्स 2016 एंड 17. सो आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स के बाद क्या हम लोग का नेट प्रॉफिट रहेगा वो हम लोग को बोला है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स. ओके, हम लोग का जो नॉर्मल फॉर्मेट रहता है वो सी सेल्स हम लोग का टोटल कितना है 4,85,268. टोटल हम लोग ने ही फाइंड आउट किया है. टोटल क्यों ले रहे हैं, हम लोग को पूरे कंपनी का करना है ना कि प्रोडक्ट वाइज करना है. सो इसके लिए हम लोग टोटल ले रहे हैं. ओके, सो टोटल इज दिस मच. टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स. ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज 3,83,000. ओके, नो प्रॉब्लम. सी सेल इज दिस मच 4,85,268 माइनस 3,83,000 दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि हम लोग ने अभी तक इंटरेस्ट एंड टैक्स चार्ज ही नहीं किया है. दैट इज 1,02,268. दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. नाउ वी हैव टू माइनस इंटरेस्ट. सी इंटरेस्ट टोटल इज 31,288. so minus 31,288 it comes to 70,980. what is that? Profit before tax. Okay, profit before tax this much. now 50% is the tax, so multiplied by 50% it comes to 35,490. so tax minus करने के बाद 35,490 that is profit after tax. that is profit after tax. just we have to show that how profit after tax will be calculated. Okay, so here we have calculated that. so here we have completed illustration number 51. if you found this video helpful then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. thanks for watching friends.